میں عرض کر رہا تھا کہ آج اسمبلی کا اجلاس ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اجلاس میں ہمارا جو الائنس ہے اس کی اکثریت موجود تھی اور اپوزیشن کے وہی جو لوگ ہیں جو کہ اقلیت میں وہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں ہم نے گورنر کے خلاف تحریک استحقاق جو ہے وہ بھی پیش کی اور گورنر کے جو اقدامات ہیں ان کی مذمت بھی ایک قرارداد کے ذریعے جناب میاں اسلم اقبال صاحب نے جو پیش کی وہ کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حالات جو ہیں وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یا اس وقت جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس سے ہٹ کر حکومت جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلنے میں لگی ہوئی ہے. وہ وزیر داخلہ جس کو آج اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا, جو اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی, لیکن وہ ایک آئینی اور قانونی حکومت کو ختم کرنے کے لیے لاہور میں موجود ہے. اور پچھلے 2 دنوں سے جس طرح وفاقی حکومت نے لاہور پر یلغار کی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے. میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے نزدیک آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے پہلے اسی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو رسوائی کا سامنا کرایا اور اب ایک دفعہ پھر انہوں نے گورنر کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ جہاں ماسوائے رسوائی کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز جن کی اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور خان صاحب کے فیصلے پر لبیک کہیں گے. جو بھی ہمارا قائد فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی پنجاب اسمبلی کے اراکین اس فیصلے کی تائید کریں گے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسمبلیاں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ایک اسمبلی نہیں, اس جیسی درجنوں اسمبلیاں جو ہیں اپنے قائد کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور کسی کو اس بات کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شاید کسی وقت ہمارے جو اراکین ہیں کسی مسلط کا شکار ہو جائیں. ہم آج بھی اکثریت میں تھے, انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اکثریت میں ہوں گے, اور جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے یہ حکومت چلے گی. جب عمران خان صاحب حکم دیں گے تمام اراکین ان کے حکم پر لبیک کہیں گے. پہلے میاں صاحب بات کر لیں تو پھر میاں صاحب کر لینا بات. جی میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اسمبلیاں چل رہی ہوں, معاملات آگے کی طرف چل رہے ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح فیڈرل حکومت کے آگے کی طرف دن جا رہے ہیں ویسے ویسے غریب عوام بری طرح مہنگائی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. یہ پہلی بار ہی ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر نے اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا. عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے غریب عوام کے لیے سوچا. 1 مہینے بعد اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنخواہیں بھی دے سکیں. یہ صرف اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ, چاہے IMF ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, چاہے کوئی ڈونر ایجنسی ہو, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ تھی وہ ساری کی ساری باہر چلی گئی. پچھلے 7 ماہ کے دوران, یہ بڑا الارمنگ ہے جو آپ کے سامنے فگر رکھ رہا ہوں, پچھلے 7 ماہ کی فیڈرل حکومت کے دوران 6.5 لاکھ پاکستانی
जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, स्किल्ड लेबर वाले थे, सारे बाहर चले गए। कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। वजह क्या है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि जब तक ये हुकूमत मसल्लत रहेगी हमारा फ्यूचर कोई नहीं है, इस मुल्क के अंदर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार इसलिए रखा हुआ है कि अपने केसेस ख़त्म कर लें। मुझे बताएं आप सब जो नौकरी पेशा लोग हैं, पिछले 7-8 माह में वफाकी हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया आपको सिवाय महंगाई के अलावा? हर घर के अंदर लड़ाई जो है, मियाँ बीवी की लड़ाई करवा दी इन्होंने। आमदनी उतनी है, अखराजात पहाड़ जितने बढ़ गए हैं, हर घर के अंदर लड़ाई करवा दी है इसने। कोई बच्चों की फीस नहीं दे सक रहा, कोई घर का किचन पूरा नहीं कर सक रहा, कोई मकान का किराया नहीं दे सक रहा, किसी की जेब में पेट्रोल के मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं रहे, कोई दवाई नहीं ले सक रहा। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? ये एक फॉरेन एजेंडा है। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा है, ये फॉरेन एजेंडा है। और फॉरेन एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को हमेशा कशकोल उसके हाथ में और वो मांगता फिरे। जब पाकिस्तान 6% शरह नमू से GDP की शरह से तरक्की कर रहा था, तो कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इमरान खान को हटाना ज़रूरी था? आज पाकिस्तान की ग्रोथ नफ़ी में चली गई, मनफी में चली गई, और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजिज़ आ गया। अगली बात जो मैं बता के जा रहा हूँ, बिजली का यूनिट 80 रुपये फी यूनिट करने जा रहे हैं। ये आज की मेरी बात लिख लें। यहाँ पर लोग मोमबत्तियाँ और दिए जलाएंगे। अब बिजली का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जिसका 2000 बिजली का बिल आता था, उसका 8000 रुपया बिजली का बिल आया। और हम ये चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचा है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी जब इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे हुकूमत आएगी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम मैंडेट दे और असम्बलियों में भेजें। इसीलिए हम असम्बली तहलील कर रहे थे। अपने इक़्तिदार की कुर्बानी हम इसलिए दे रहे हैं, दोनों असम्बलियाँ, KPK और पंजाब। लेकिन गवर्नर ने रात को, गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा है, एक शहनशाह की तरह झूठे आर्डर निकालकर गलत आइन की तशरीह गलत करते हुए, और इस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया जिस तरह कभी सदर ममलिकत 58(2) भी इस्तेमाल करते थे। असम्बली के अंदर जो करारदाद मंजूर की गई है, तरीके इस्तकाक भी और तरीके मजम्मत भी, मजम्मती करारदाद जो पेश की गई है और जो मंजूर की गई है कि गवर्नर को इस असम्बली में बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए कि आपने गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल किया और आपने इस 12 करोड़ अवाम का इस्तकाक मजरू किया है। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नर को बुलाया जाए। और सारी वफाकी हुकूमत पिछले 15 दिन से साजिश पे साजिश करके पंजाब में बैठी है कि यहाँ पे साजिश की जाए। पहले 3 महीने हमजा ने हुकूमत की, अदलिया ने गैर कानूनी करार दिया। ये वजीर आला ही नहीं है, हमने नहीं कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। और इसका साबका वजीर आला के तौर पर भी नाम नहीं लिखा जाएगा, ना इसकी तस्वीर कहीं पर लगेगी। लेकिन अंदर इक़्तिदार की हवस नहीं जा रही, और ऊपर बाप है, नीचे बेटा है, कभी ताया है, नीचे भाई है। एक खानदान लिमिटेड कंपनी बना के पाकिस्तान को चलाया जाता है, खानदान लिमिटेड, कि उस खानदान के अंदर रहकर जो जमहूरी किसी का हक है वो सलब कर लिया जाए और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सूबे को चलाया जाए। इनका पाकिस्तान में ना रहना सहना है, ना जायदादें हैं, ना औलादें हैं, ना इलाज है, ना शॉपिंग है, ना कोई चीज़ नहीं है।
इनका सब कुछ मुल्क से बाहर है। अगर इस मुल्क के अंदर इनका कुछ है तो एक हुक्मरानी का जज्बा है कि हम यहाँ पर आके हुक्मरानी करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान जिन हालात में है, ये जरदारी और नवाज फैमिली, ये सारे इनके जो हवारी, ये पाकिस्तान के अंदर अपने पैसे लिए हैं ना, जो बाहर जाके कहते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं तुम्हारी इलादे मुल्क से बाहर कारोबार करें और हम मुल्क के अंदर करें इन्वेस्टमेंट, आगे ये कैसा हो सकता है? अगर ये सिर्फ अपनी जायदादें जो इनकी बनी है पाकिस्तान के अंदर पैसे शिफ्ट कर लें तो मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तानी दलदल से बाहर निकल सकता है। लेकिन इनके पेट में कौम का दर्द नहीं है, औलाद के केसों का और पैसों का दर्द है कि केस किस तरह से ख़त्म करने हैं और उनकी दौलत किस तरह से बढ़ानी है, ये इनके पेट में दर्द है। हम गवर्नर पंजाब के जो उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया उसकी भरपूर मजम्मत भी करते और इसके साथ साथ असम्बली में जो हमने तरीके इस्तिकाक आज पेश किया उसके हवाले से उनको असम्बली में भी बुलाएंगे। अच्छा, मैं एक सेकंड मेरी बात सुन लेना। देखिए, बात ये है कि अभी हम बात कर रहे थे और जिस तरह मियाँ साहब कह रहे थे कि आज से 4-5 महीने पहले जिस तरह हमजा शहबाज के केस में अदालत ने इनके मुंह पर तमाचा मारा था, आज एक दफ़ा फिर अदालत में इनकी रुसवाई हुई है और हुकूमत जो है उसको बहाल कर दिया है और गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था उसको कालअदम करार दे दिया अदालत। नंबर पूरे हैं इत्तेमाद के वोट के लिए। आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें कह रहे नंबर पूरे नहीं थे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेमाद में लिया गया। जी बिल्कुल, कोई फैसला जो है वो इमरान खान साहब को इत्तेमाद में लिए बगैर नहीं किया जाता। आपके सर नंबर पूरे हैं सर जी, इत्तेमाद के वोट के लिए? सर अभी फैसला आया है, जो कोर्ट की डायरेक्शन आएगी, डिटेल जजमेंट देख लें इंशाल्लाह ताला। जी, हम पहले कोर्ट का फैसला तो देख लेना, उसके मुताबिक हम अगला अपना नया अमल तय करेंगे। कोर्ट के फैसले को हम देखेंगे और कि उसके कोर्ट बाद ने क्या हमें डायरेक्शन दी हैं, उसके मुताबिक उस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। हम अपने मौक़िफ़ जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि हम जल्द से जल्द असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसके लिए आज डेट रखी गई थी। अब हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने हमें डायरेक्शन क्या दी हैं, फिर उसके बाद आइंदा का लिमिट थैंक यू जी, शुक्रिया। ये बताएं राजा साहब कि आपने कहा कि वफाकी हुकूमत को कोई फैसिलिटेट कर रहा है, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है इनको? आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। आखिरी सवाल को जवाब